دیکھ لیجئے پنجاب کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی، جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو عیسیٰ کا دعویٰ کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا رسول مانا اور اعلان کیا، اے لوگوں جو آخری نشانی اس دنیا کے اندر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، وہ عیسیٰ میں ہی ہوں، وہ نبی میں ہی ہوں، میں اس دنیا کے اندر آ گیا ہوں، میں نبی بن کر آ گیا ہوں، میں اللہ کا رسول بن کر آ گیا ہوں، تم سمجھو کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ اب بتائیے جب عیسیٰ اس دنیا کے اندر آئیں گے فَيَخْسِرُ الصَّلِيبُ، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، عیسائیت کو ختم کر دیں گے، اور وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، سور کو ختم کر دیں گے میرے پیارے ساتھیوں، وَيَجْعَلُ الْجِزْيَةَ، جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ عیسیٰ جب آئیں گے اس دنیا میں ایک مرتبہ امن و امان پھر سے قائم ہو جائے گا، یہاں تک کہ یہ لکھتے ہیں کہ بکری شیر کے ساتھ کھیلے گی، بچے سانپ کے ساتھ کھیلیں گے، امن و امان قائم ہو جائے گا، یہودیت ختم ہو جائیں گے، بہت سب مذہب کے لوگ ختم ہو جائیں گے، صرف اسلام باقی رہ جائے گا، امن و امان قائم ہو جائے گا، زمین میں لوگ سجدہ کرنے والا ہو جائے گا، زمین کے اندر لوگ دنیا کی تمام دولتوں سے ایک سجدہ کو بہتر جانے گا۔ لیکن یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اب غور کیجئے دنیا کے اندر کتنے سور آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ ان مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں سے کہیے ان سوروں کو ختم کیجئے، جزیہ ختم کیجئے، صلیب کو توڑیے میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو پیشین گوئی کی کہ 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، ان میں سے مرزا غلام احمد قادیانی بھی بنے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کیا ہے، اور ان کی موت کیسے ہوئی؟ دفتر قادیہ میں ان کی موت ہوئی، ایک بیماری کی وجہ سے دفتر قادیہ۔ اور قادیہ کس کو کہتے جانتے ہیں؟ ٹوائلٹ جانتے ہیں، لیٹرین، پاخانہ روم جانتے ہیں؟ اس میں بیٹھ کر ان کی موت ہوئی، اس میں بیٹھے رہ کر ان میں بیٹھے رہے، زیادہ دیر تک اس میں بیٹھے رہتے تھے بیماری کی وجہ سے، اور اسی کے اندر اس کی موت ہوئی، جس کی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا کہ قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی۔ میرے پیارے ساتھیوں آج دیکھ لیجئے ثقیل بن حنین، یہ بھی اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو جھوٹے نبی کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نبی بن کر آ گیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی کہ 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، 30 جھوٹے کذاب نبی پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو دعویٰ کریں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اپنے آپ کو دعویٰ کریں گے میں رسول ہوں، لیکن ان کے بہکامے میں بالکل نہیں آنا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک بہت بڑی لسٹ ہے، علامت صغری اور علامت کبریٰ کی ایک بہت بڑی تفصیلی روایت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد آپ اقرار کیجئے گا کہ ہاں اس دنیا میں یاجوج اور ماجوج آئے ہیں، اس دنیا میں دجال آ گئے ہیں، اس دنیا میں عیسیٰ آ گئے ہیں اور زمین کے اندر آ کر 40 سال رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں عیسیٰ کیسے آئیں گے؟ حدیثوں میں اس کی تشریح یہ بتاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں میں اپنے ہاتھ کو رکھ کر آئیں گے، فجر کے وقت آئیں گے، ایسا لگے گا کہ نہا کر آ رہے ہیں، ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اور اس حال میں آئیں گے دمشق کی مسجد میں عند المنارۃ البیضاء، اور عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق کے اندر مسجد ہے، اور اس مسجد کی مینار سفید ہے، اس مینار کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور آ کر کیا کریں گے؟ لوگوں کے پاس جب جائیں گے امام مہدی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہوں گے، اور امام مہدی جب عیسیٰ کو دیکھیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ صلی لنا، آپ ہمیں نماز پڑھائیے، عیسیٰ کہیں گے ان بعضکم بعض الامراء، یقیناً میں اس امت کا پیغمبر نہیں ہوں، میں اس امت کا نبی نہیں ہوں، اس امت کا نبی محمد رسول اللہ ہے، میں اس امت کو نماز نہیں پڑھاؤں گا، میرے لیے امامت اس امت کے لیے بہتر نہیں ہے، آپ نماز پڑھائیے۔ مہدی نماز پڑھیں گے، عیسیٰ امامت میں نہیں بلکہ مقتدی کی صف میں نماز پڑھیں گے، یہ امت کے لیے خوشخبری ہے، محمد امتی کے لیے خوشخبری ہے، اور یہ بشارت اور یہ
शान और शौकत की बात है कि हमारे दरमियान एक नबी भी आए लेकिन इमाम नहीं बने, मुक्तदी बने, हमारे पीछे नमाज पढ़े, इमाम के पीछे नमाज पढ़े, उम्मत मुहम्मदिया के पीछे नमाज अदा किए। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद फिर ईसा अलैहिस्सलाम फयतलुबुहु दज्जाल को ढूंढेंगे। तो दज्जाल इंसानों को बहकाता था, उस दज्जाल को ढूंढ कर, एक जगह का नाम है बाबे लुद, वहां पर दज्जाल को ढूंढ के पालेंगे, ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे और दज्जाल का वहां खात्मा कर देंगे। इन तमाम निशानियों के बाद मेरे प्यारे साथियों कयामत होगी। लेकिन ये कहता है कि हम कयामत की ये निशानी है, हम झूठे हम नबी बनकर आ गए हैं, हम ईसा है, हम ही अल्लाह के रसूल हैं। मेरे प्यारे साथियों, इनकी बातों पर आप बिल्कुल ही नहीं आइएगा और अपना ईमान नहीं बेचिएगा। जिस तरह NRC CAA में जब ऐलान किया गया कि कोई मुसलमान अगर अपने आप को हिंदू नाम साबित करके CAA के तहत अगर अपना नाम नागरिकता में दर्ज करा ले तो हम उन्हें अपना नागरिकता दे देंगे। कितने मुसलमानों ने कहा हम अपनी जान को बचाने के लिए हिंदू नाम से नागरिकता ले लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, यह आपके ईमान की कमजोरी है। आपको वो वाकया शायद मालूम होगा, 2 आदमी का गुजर एक बुत आस्थान से हुआ, एक जहां पर मकाम में बुत रखे जाते हैं उस जगह से हुआ। मेरे प्यारे साथियों, दोनों आदमी को पकड़ा गया। उस कमेटी वाले ने बुत मालिकों ने उस दोनों आदमी को पकड़ा और कहा यहाँ कोई चढ़ावा चढ़ाओ, इस मूर्ति के ऊपर कोई चढ़ावा चढ़ाओ। जब तक तुम नहीं चढ़ाओगे ये उसूल ज़ाब्ता है कि तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा। एक ने चढ़ा दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये फिन्नार, इनका ठिकाना जहन्नम है। एक ने कहा हम नहीं चढ़ाएंगे, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है, कुरान इस बात की इजाजत नहीं देता है, हम नहीं चढ़ाएंगे, हमारा मजहब हमें ये तालीम नहीं देता है। उसने नहीं चढ़ाया, उसको कत्ल कर दिया गया। अल्लाह के नबी खुशखबरी सुनाते हैं इस आदमी के लिए अपना ठिकाना जन्नत है। इसलिए एक बात याद रखना, ईमान अपना मजबूत कीजिए। हमारे ऊपर बहुत सी इस तरह पाबंदियां आएंगी, हमें जगह जगह पर मजबूर किया जाएगा, जय श्री राम के नारे लगाकर हमें मारा जाएगा, हमें पीटा जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये इस्लाम अधिकार नहीं देता है कि आप अपनी जान बचाने के लिए भी किसी गैर के सामने अपना सर झुकाए। एक बात कुरान में एक रिवायत है कि सूअर का गोश्त अगर कोई मजबूर करे तो आप मजबूरी में खा सकते हैं। बहरहाल मुझे सही तरीके से इसका इल्म नहीं है, लेकिन जबरदस्ती अगर कोई आपको चढ़ावा चढ़ाने के लिए मजबूर करे तो आप बिल्कुल ही नहीं चढ़ाइएगा। और खुसूसन इस देश में अगर हमारी मिट्टी मिल भी जाए, हमें मारकर लहूलुहान किया जाए, फिर भी आप ये बिल्कुल नहीं सोचना कि हम अपना नाम हिंदू देकर, हम अपना नाम ईसाईयत देकर, हम अपना नाम यहूदियत देकर नागरिकता लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल आप नहीं सोचना। मुसलमानों, आपके लिए कुरान और हदीस ये कहती है, वो हदीस ये कहती है अद-दुनिया सिज्नुल मोमिनी व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है। हमारी दाढ़ी पर पाबंदी आएंगी, हमारी टोपी पर पाबंदी आएंगी, हमारी कुर्ते पर पाबंदी आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस्लाम को छोड़कर, इस्लाम को तर्क करके दूसरे में शामिल हो जाएं। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बला मिनहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इस्लाम को छोड़कर अगर आप कहेंगे हम 5 साल के लिए, अगर आप कहेंगे कि हम 2 महीना के लिए किसी धर्म में चले जाएंगे, किसी दूसरे मजहब को इख्तियार कर लेंगे, एक बात याद रखना, व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, आप नुकसान उठाने वाले में से हो जाएंगे, आप घाटे में हो जाएंगे, आपका ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। इसलिए अगर आपके ऊपर ये पाबंदी आ जाती है तो आप ये हदीस को अपने सामने रखिएगा। दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है, हम इस कैद खाने में कैद होकर रहे हैं, हम इस दुनिया में मोहम्मद के गुलाम होकर रहे हैं, हम इस दुनिया में मोहम्मद के कैदाना जिंदगी में, आजादाना जिंदगी में नहीं बल्कि बंदोबस्त वाली जिंदगी में है। इस्लाम जो हमें कहे, अगर हमारे ऊपर बाउंडेशन लगा दे, अगर हमारे ऊपर ये कैद, अगर हमारे ऊपर ये कानून नाफिज कर दे कि तुम्हें ऐसा करने पर अगर इस्लाम छोड़ना पड़े, लेकिन छोड़ना नहीं, अपनी जान चली जाए, जानों का नजराना पेश कर देना, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ना। मेरे प्यारे साथियों, ये इस्लाम की तालीम है। अगर जान भी चली जाए, अल्लाह का नाम नहीं छोड़ना। अल्लाह के नबी के पास एक कुफ्फार आता है, एक मुशरिक आता है, अल्लाह के नबी की तलवार एक दरख्त के ऊपर रखी हुई होती है, वो आकर तलवार उठाता है और अल्लाह के नबी के सामने खड़े हो जाते हैं और अल्लाह के नबी से कहते हैं, मोहम्मद मैं यमनऊ का मिन्नी,
مجھے تم سے کون بچا سکتا ہے؟ دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں. اب میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اب میرے ہاتھ میں अस्त्र शस्त्र है, मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है, मेरे हाथ में ताकत है. आपको कौन बचा सकता है? आपने ये नहीं कहा कि हमें लात मनात उज़ा, अरब के अंदर वो 3 बड़े बड़े मशहूर देवी देवता थे, आपने उसका नाम नहीं लिया. इस जमाने में श्री कृष्ण जी, राम जी और श्याम जी इस जमाने में, लेकिन अल्लाह के नबी के जमाने में लात मनात और उज़ा की पूजा पाठ की जाती थी, कुफ्फार और मुशरिकीन करते थे. आपने डर होकर अपने दिल में खौफ खाकर लात उज़ा और मनात का नाम नहीं लिया, बल्कि आपने कहा कि मुझे बचाने वाला कोई अगर है तो अल्लाह ताला है. आपने डंके की चोट पर कहा मुझे बचाने वाला अल्लाह है. जैसे अल्लाह का नाम लिया, थर थर तलवार हाथ से कांपने लगे, हाथ कांपना शुरू हुआ और तलवार जमीन के अंदर गिर गए. अल्लाह के नबी ने उस तलवार को उठाया और कहा अब बताओ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उस आदमी ने कहा मैं तो अल्लाह को नहीं मानता हूँ, मैं तो अल्लाह की परस्तिश और इबादत नहीं करता हूँ. मुझे अगर आप अपनी कृपा से, अपने रहमो करम से छोड़ सकते हैं तो आप छोड़ दीजिए, वरना जो सजा देना आप दीजिए. मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने उसको छोड़ दिया. वो आदमी अपने गांव के अंदर जाकर ऐलान किया और मोहम्मद के ये अखलाक बताए. उसके बाद आगे लिखते हैं कि वो इस्लाम लाए थे, कोई लिखते इस्लाम नहीं लाए थे, लेकिन उनका दिल इस्लाम से मुतमईन हो गया था. इसलिए गर्दन कटानी पड़े, जान अगर चली भी जाए, इस्लाम नहीं छोड़ना है. मरते दम तक अल्लाह का नाम लेना चाहिए. आप डर के मारे, आजकल बहुत से लोग देखे होंगे आपने, ऐसे मुसलमान के सभा में आ जाएं, दाढ़ी टोपी लगा कर आएंगे, टोपी पहन कर आएंगे, लेकिन जब सभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, तो वो फिर अपने सिर पर, अपने कपाल पर सिंदूर लगा लेंगे. वो ये साबित करता है कि हम हिंदुओं के मसीहा हैं, वो ये साबित करता है हम ईसाई के मसीहा हैं. उसका मतलब उनके ईमान में कमजोरी नहीं है. मैं ये नहीं कहता हूं कि ये हमारा इस्लाम आपको लड़ने की इजाजत देता है, नहीं. इस्लाम से बढ़कर इंसानियत का पाठ, इंसानियत की तदरीस देने वाला कोई धर्म आपको नहीं मिल सकता है. इस्लाम हमें भाईचारा सिखाता है और यहां तक सिखाया कि अगर कोई जैनी भाई है, कोई दलित भाई है, तो जिस तरह हम आदम के संतान हैं, वो भी आदम के संतान है. जिस तरह आप एक मुसलमान को अपना भाई समझते हैं, एक मुसलमान को अपना मसीहा समझते हैं, वो भी हमारा ही भाई है. इसका मतलब ये है हम उसके साथ अच्छे व्यवहार से पेश आए. इसका मतलब ये हम उनके साथ हुस्न तरीके से पेश आए, बुदोबाश तरीके से पेश आए. इस्लाम आपको ये अधिकार नहीं देता है कि कोई मुसलमान मिल जाए उसको छोड़ दिया जाए, कोई अगर गुनहगार मुसलमान मिल जाए उसको छोड़ दिया जाए और कोई गुनहगार हिंदू मिले उसको कत्ल किया जाए. नहीं, इस्लाम न्याय सिखाता है, इस्लाम अमन व अमान सिखाता है, इंसाफ पसंद है. इस्लाम ये सिखाता है कि कोई अगर भारत के अंदर किसी भी धर्म की अगर माँ हो, किसी भी धर्म की बेटी हो, जिस तरह आप अपनी बेटी की इज्जत और सम्मान करते हैं, उस तरह उस दलित माँ की भी इज्जत कीजिए, उस तरह उस दलित समाज की भी इज्जत कीजिए. वो भी हमारी माँ की तरह एक माँ है, वो भारत की बेटी है. भारत की बेटी के हिसाब से आप उससे मोहब्बत कीजिए. मेरे प्यारे साथियों, आज देख लीजिए हमारी एक औरत के ऊपर आरएसएस वाले, जनसंघी वाले, संघ परिवार वाले हमला करने के लिए गए. मेरे प्यारे साथियों, उसका नाम है मुस्कान. और ये कानून, ये हंगामा किस लिए हो रहा है? हिजाब की पाबंदी पर ये कानून और ये विरोध लगातार चल रहे हैं. लेकिन एक बात याद रखिएगा, बड़े बड़े विद्वान जो हिंदू हैं, बड़े बड़े विद्वान महिला जो हैं, वो इसके खिलाफ विरोध केस दर्ज नहीं कराते हैं, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कराते हैं. लेकिन कुछ लोग आरएसएस, जनसंघी और संघ परिवार के रहने वाले हैं, बजरंग दल के रहने वाले हैं, उनमें कुछ चेले ऐसे हैं जो ऐसा काम करने पर अंजाम देते हैं. लेकिन मुसलमानों, आपको एक बात मैं कहता हूं कि आप निडर होकर काम. ধন্যবাদ। ঘটন বন্ধ হতে যাচ্ছে, যা যাদের খাওয়ার প্রয়োজন আছে আপনারা যে খাওয়া দাওয়াটা সেরে নেন. আধ ঘন্টার মধ্যে মধ্যে হোটেল বন্ধ হয়ে যাবে, তাই যাদের খাবার দরকার আছে খাওয়া দাওয়া করে নেন. বন্ধুবান, আপনারা বিচলিত হবেন না. এনার পরে 20 থেকে 25 মিনিটের মধ্যে मौलाना अब्दुल गफ्फार सलाफी साहब अपने सम्मुख के आसके. तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बता रहा था ये कि अगर आपके सामने आपके धर्म के खिलाफ कोई अगर कुछ करे तो आप बिल्कुल ही इसमें
सुलह नहीं कीजिए, क्योंकि हमारा धर्म जो बताया है माशाअल्लाह हमारे इस देश के संविधान ने भी हमें वही बताया है। इंशाअल्लाह मुस्कान के बारे में तकरीर कल मेरा जहाँ प्रोग्राम है काड़ा गोला में वही तफसील से बताएंगे, मैं क़यामत के बारे में बता रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की एक निशानी ये बताए हैं कि लोगों सुनो, हत्ता युबासा दज्जालुन कज़्ज़ाबुन करीबुम मिन सलासीन, क़यामत के आने से पहले पहले 30 झूठे नबी पैदा होंगे। और आपके ज़माने में कितने नबी ऐसे पैदा होंगे जिन्होंने अपने आप को दावा किया कि मैं नबी हूँ, जिन्होंने अपने आप को दावा किया कि मैं रसूल हूँ। आइए दूसरी जो निशानी बताए हैं वो निशानी ये है कि वयुक़बज़ल इल्मु, इस दुनिया में इल्म को उठा लिए जाएंगे, इस दुनिया से इल्म को उठा लिए जाएंगे। दुनिया में अंदर देखिएगा, यानी बड़े बड़े आलिम इस दुनिया से चले गए। इस लॉकडाउन में, इस कोरोना महामारी में कितने बड़े बड़े आलिम इस दुनिया से चले गए। इल्म इस दुनिया से उड़ जाएगा। यानी जो अच्छे इंसान है उसको तरजीह नहीं दी जाएगी, जो बुरे इंसान है उसको तरजीह दी जाएगी। हमारे कौम का अमीर जो बनेगा वो जाहिल बनेंगे, हमारे कौम का जो हाकिम बनेगा वो जाहिल बनेंगे। जिनके पास अकल नहीं है, जिनके पास इल्म नहीं है, उसको गांव का अमीर बनाया जाएगा, उसको गांव का सरदार बनाया जाएगा। आइए मैं आपको बयान कर रहा हूँ, वह तज़हरल फितन, क़यामत आने से पहले पहले एक निशानी ये भी बताए हैं, दुनिया के अंदर फितना फसाद बर्पा हो जाएंगे, दुनिया के अंदर फितना ज़ुहूर हो जाएगा। ऐ लोगों, फितना कभी तो माल का फितना होगा, कभी तो औरत का फितना होगा, कभी माल का फितना होगा। इस दुनिया में माल कमाने के लिए लोग इतने मुब्तला हो जाएंगे, माल के पीछे इतने मुब्तला हो जाएंगे। कोई आदमी नमाज पढ़ने के लिए जाएगा, फिर भी दिमाग में ये सोच लगा रहेगा, अपने दिमागों से सोचता होगा कब हमारी नमाज खत्म हो, कब हमारी नमाज पूरी हो। माल के चक्कर में लगे हैं, माल कमाने के चक्कर में लगे हैं, माल ज्यादा हो जाएंगे, अल्लाह को भूल जाएंगे, नबी को भूल जाएंगे। नमाज पढ़ने जाएंगे फिर भी माल का हिसाब करेगा, नमाज पढ़ने जाएंगे फिर भी कारोबार का हिसाब करेगा। ये फितना माल का फितना होगा। और एक फितना औरतों का भी फितना होगा। औरतों का फितना ये होगा कि हम अपनी बेटियों को सही तरबियत नहीं देंगे। मेरे प्यारे साथियों, औरत का फितना ये होगा। इसलिए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत की एक जमात ऐसी होंगी, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीला, क़यामत की निशानी एक होंगी कि हमारी औरतें जो होंगी वो बिल्कुल कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी होगी। कपड़ा तो दिखेगा जाहिर में कि कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन बावजूद नंगी होंगी। इसका मतलब यह है कि कपड़े में जिस्म का चढ़ाव और उतार नजर आएगा। जो हिस्सा ऊंचा है वो हिस्सा ऊंचा नजर आएगा, जो हिस्सा नीचे है वो हिस्सा नीचा नजर आएगा। इसका मतलब ये कि कपड़ा इतना टाइट पहनेंगे कि जिस्म का चढ़ाव और उतार नजर आएगा। और वो औरत अपने जिस्म के चढ़ाव और उतार से, अपने नुमाइश से मर्दों को, नौजवानों को अपने तरफ खींचेंगे। ये भी औरत का एक फितना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, आए मोमिनो, आए सहाबियों, दुनिया के फितने से बचा करो और औरत के फितने से बचा करो। दुनिया के फितने से जो बच गए और औरत के फितने से जो बच गए वो इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और उस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे। इसलिए कि फ़इन्न अव्वला फितनति बनी इस्राइल कानत फिन निसा, बनी इस्राइल में जो फितना, पहला फितना और फसाद बर्पा हुआ वो औरत का फितना था, वो औरत का फितना फसाद था। मेरे प्यारे साथियों, वो वाक़या इस तरह है, बनी इस्राइल में जब लोगों को ये कहा गया एक जंग के लिए लोग मूसा अलैहिस्सलाम के साथ निकले थे और मूसा अलैहिस्सलाम जिस रास्ते से गुजर रहे थे, बनी इस्राइल के साथ गुजर रहे थे, बनी इस्राइल को कमजोर करने के लिए, बनी इस्राइल को हराने के लिए, बनी इस्राइल को मगलूब करने के लिए जो कौम थे उनके मुखालिफ कौम थे, उन्होंने ये साजिश रची कि हम अपनी औरतों की नुमाइश करने के लिए, हम
आप अपनी औरतों को ये तालीम दे देंगे। आय औरतों सुनो, तुम लोग जिस्म को खोल कर नंगी हालात में ये बिल्कुल तय कर लो कि तुम्हारे पास कोई अगर मर्द आ जाए, बनी इसराइल का कोई आदमी मुंह काला करने के लिए आ जाए, तुम बिल्कुल उसको अपने बाहों में ले लेना। अगर एक भी आदमी तुम्हारे बाका में आ जाए तो तुम समझोगे कि तुम कामयाब हो गए हो, बनी इसराइल मगलूब हो गए, बनी इसराइल हार गए। उन औरतों ने ऐसा ही किया। उन औरतों ने अपने जिस्म को खोलकर बनी इसराइल के लोगों को अपनी तरफ दावत देना शुरू कर दी। इतने में बनी इसराइल का एक आदमी, अय्याश आदमी, उस औरत के पास आ गया और उसके साथ मुंह काला किया गया। अल्लाह फरमाता है कि मैंने इस वजह से उस कौम को हलाक कर दिया, मैंने इस वजह से बनी इसराइल को हलाक कर दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, आए लोगों औरतों के फितने से बचा करो, इसलिए कि फइन्ना अव्वल फितनति बनी इसराइल फइन्ना फितनता औ फइन्ना अव्वल फितनति बनी इसराइल कानत फिन निसा। सबसे पहला फितना और फसाद जो बर्पा हुआ था वो बनी इसराइल में औरतों के ही सिलसिले में था। आज